تو وہ تمام لوگ جو کہ بیرون ملک کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنا سرمایہ یہاں پر بھیجتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے کیا گولڈن اپرچونٹیز ہے پاکستان میں، ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس پر ڈسکشن کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جو ہے وہ مزدور اور ان کی آواز بنتی رہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا جو ہے وہ آواز بھی لگاتی رہی ہے پیپلز پارٹی۔ تو بینظیر صاحبہ کی کل برسی بھی ہے 27 دسمبر کو، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کے اندر کس طریقے سے اپنا ریوائیو کرے گی، اور کیا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی اگر گورنمنٹ بناتی ہے جیسے کہ سندھ میں ہے، ویسے تو ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے جیسے وہ شکوہ کر رہے ہیں بھٹو صاحب، بلاول بھٹو، کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو کس طریقے سے ریفارمز لے کر آئیں گے اور کیا اپرچونٹیز لے کر آئیں گے جو پاکستان میں موجود ہیں سپورٹرز پیپلز پارٹی کے، ان کے لیے، اور اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے۔ تو محمد خالد اوان صاحب نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ ریجن کے صدر بھی ہیں۔ سر ویلکم ٹو نیوز مارننگ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بتائیے گا سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پر امریکہ کے اندر ایز اے فارن منسٹر بلاول بھٹو سرو کر چکے ہیں یہ لاسٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، تو کیسے ٹائی امریکہ کے ساتھ بہتر کرنے میں بلاول بھٹو زرداری نے کتنا کردار ادا کیا ہے؟ شکریہ پی این این مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو 25 دسمبر کا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے۔ آج کے دن بانی پاکستان یہ یوم پیدائش کا دن ہے ان کا، اور یقیناً ہر سال ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے انٹرو میں خود ہی فرما دیا کہ 2 دن بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی ہے، اور ہم ہر سال کی طرح پی 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 یو ایس اے نے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ یقیناً اس روز ہم ان کی جو خدمات ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے عام اور مجبور انسان کی خوشحالی کے لیے انہیں پھر ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور پھر دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اور بانی پاکستان کے لیے بھی ان کی خدمات جو ہیں ان کے لیے خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، بحیثیت وزیر خارجہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اگر آپ ان حالات کو دیکھیں جب انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی، تو پھر آپ زیادہ محسوس کریں گی کہ پاکستان کے بارے میں ہر عام آدمی بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہا تھا کہ پاکستان آج گیا یا کل گیا، ڈیفالٹ ہوا۔ اور بدقسمتی سے اس وقت کی ماضی کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک ایسا سائفر کا شوشہ چھوڑا جس کی وجہ سے مغرب اور امریکہ کا جو ہمارے لیے مشکلات تھیں وہ اس میں انہوں نے اور اضافہ کیا۔ تو وہ بڑا کٹھن موقع تھا جس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنا منصب سنبھالا، اور لیکن ان کے کیونکہ بلڈ اور جین کے اندر ایک سیاسی بصیرت موجود تھی، اور پھر ایک لیگسی بھی تھی پیچھے جس نے بڑا کام دکھایا، اور ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے بھی تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں ان کو کئی دفعہ ریسیو میں نے کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ پاکستان کی خدمت کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور تباہ شدہ جو ہماری خارجہ پالیسی تھی اسے بہتر کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور ہم تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ مغرب اور امریکہ کے دماغ کو، ذہن کو چینج کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا کہ، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سائفر کے بارے میں امریکہ نے اور مغرب، بلکہ امریکہ نے تو ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کی کاپی ہمیں بھی بھیجی جائے۔ میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ورنہ پروگرام آپ کا اسی میں چلا جائے گا۔ لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر جس طرح مسئلہ کشمیر کو دوبارہ زندہ کیا، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ملتی، اور یہاں تک کہا کہ مودی جو ہے یہ گجرات کا بچر ہے، یہ بڑے گردے کی بات ہے۔ اور اسی طرح جب وہ انڈیا میں گئے اور ایس سی او کی کانفرنس تھی وہاں، تو ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو یہ کہا اور مسئلہ کشمیر کے بارے میں ذکر کیا کہ کشمیریوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اسے ختم کرنے میں مودی نے جو کچھ کیا اس نے صرف خود کو ایکسپوز کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان کا موقف درست ہے۔ یہ اچھا، ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی اوان صاحب کہ جب بلاول بھٹو زرداری انڈیا گئے تھے اور وہاں پر جیسے انہوں نے انٹرویوز دیے، جیسی سٹیٹمنٹ دی، تو وہ ہمارے لیے بھی بڑا ایک شاکنگ تھا کہ جس طریقے سے ویل مینرڈ طریقے سے بلاول بھٹو نے انڈین میڈیا کو اور انڈین گورنمنٹ کو سنبھالا۔
आई थिंक इंडियन मीडिया के लिए भी बड़ा शॉकिंग होगा कि किस तरीके से ही वाज जस्ट अ यंगेस्ट पॉलिटिशियन और उन्होंने इतने मीडिया के जो एंकर्स थे और वहाँ पे सबको बड़ा अच्छा डिबेट रही और बड़े अच्छे टॉक शोज रहे, बट जो उनके ओपोनेंट हैं वो ये बार बार कहते रहे हैं, तो सीवी पकड़ के वहाँ पर नौकरियां मांगने अमेरिका जाते रहे हैं कि इनको आगे, मतलब इस तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पे, और अभी वो खुद भी शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और आप चूँकि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों की क्या तवक्कुआत है पाकिस्तानी सिस्टम से? देखें, ये जो हमारे अपोनेंट है ना, अल्लाह ताला इनको हदायत दे कि इनकी कोई बाउंड्री या कोई बॉर्डर लाइन है ही नहीं है। इनको ये एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की बका का जब कोई आ जाए तो वो उसकी लाइन उसको क्रॉस नहीं करे। ये सारी हदें क्रॉस करते हैं मुखालफत के अंदर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कहते थे। लेकिन बिलावल ने पूरी दुनिया के अंदर ये लोहा मनवाया यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर का। तो कुवैत जहाँ तक बात करती हैं तो हमारी जो क़यादत है उन्होंने तो जाने कुर्बान कर दी, सिर्फ ये मुतालबा करते हुए कि पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वन ऑफ द प्रॉब्लम, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और ये वन ऑफ द इशू है कि पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ज़रूरत है। जब तक बैलेट की पर्ची फैसला नहीं करेगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये तो बड़े आराम से कह देते हैं पॉलिटिशियन करप्ट हैं, सियासतदान करप्ट हैं। आप सिस्टम जो है ना वो करप्ट बनाता है। जब फैसला कोई और करेगा, बैलेट की पर्ची नहीं करेगी, तो फिर आपको करप्ट लोग ही मिलेंगे। अगर आप अच्छे दानिशमंद सियासतदान आपको चाहिए तो पर्ची को फैसला करने दें। 2, 3, 4 टेनोर के बाद पाकिस्तानी कौम इतनी बाशऊर है, ये गंदे कीड़े जो हैं, ये करप्ट जो लोग हैं, इन्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मुतालबा तो सभी कर रहे हैं ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने भी चाहिए। अच्छा, अभी इलेक्शन डिले हो रहे हैं, तो डिलेइंग में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या मुश्किलात आ रही हैं? क्योंकि अभी तो कोई प्रॉपर एक गवर्नमेंट है नहीं। तो मैं चाहूँगी कि एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आप इस चीज़ को हाईलाइट करें कि आप लोगों को क्या मसले मसाइल पेश आते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसीज आपके साथ कितना ताउन करते हैं अगर कोई मसला हो जाए? बहुत से ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनको बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता। देखें, पहले मैं ये बता दूं कि जो इलेक्शन डिले की आप बात करें, हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान से अच्छी खबर आए तो हमें खुशी होती है, पाकिस्तान से बुरी खबरें आती हैं तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ़ होती है। इसलिए हमारी तवक्कुआत होती हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं वो सही काम करें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और आगे बढ़े। जहाँ तक हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं वो तो बहुत लंबी लिस्ट है हमारी। पाकिस्तान के अंदर हमें जो ज़रूरियाती ज़िंदगी, जो नेसेसिटी थी वो तो मुहैया नहीं होती थी ना, जिसकी वजह से शौक से तो हम नहीं आए ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो यहाँ आकर बड़ी मुश्किल से बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था और फिर जाकर हम यहाँ पे बड़े मुकाबले के बाद अपनी पोजीशनें बनाते हैं और यहाँ कामयाब होते हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े कामयाब हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यह है कि जैसे खून पसीने की कमाई और पूंजी जो है जब पाकिस्तान भेजी जाती है तो वो महफूज नहीं, उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। गवर्नमेंट उस बारे में कोई भी गवर्नमेंट जो है उसमें वो उस तरह से उसने उतना किरदार अदा नहीं किया। हमें बाज़ औक़ात तो हमारे अपने अजीज़ों और अक़ारिब रिश्तेदार ही लूट लेते हैं। अगर उनसे कोई बच जाए तो जो इलाके का जो जगह या बदमाश है वो ले जाता है, उससे बच जाए तो आपके जो ब्यूरोक्रेसी के जो एहलकार है ये लूट लेते हैं। एक सिस्टम है पूरे का पूरा जिसने तहैया किया हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं कि मैं इन्वेस्टमेंट काउंसलर भी मुझे हमारी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, ऑनरी इन्वेस्टमेंट काउंसलर, और मैंने ये चीज़ें फेस की हैं कि जब मैं लोगों को कन्विंस करता था कि पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्ट करें तो वो मुझे कहते थे कि आप गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान में हमारा सरमाया महफूज रहेगा। तो एक मोटर लगाने के लिए हम, मेरा ख्याल है महीनों क्या पता नहीं सालों साल लग जाए, वो नहीं लगा सकते। हमारे जूते घिस जाते हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई अच्छा कारोबार हो तो फिर वहाँ वो जो घटा लेने वाले बैठ जाते हैं। तो किस तरह पाकिस्तान के अंदर, हम पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल्कुल सरमायाकारी करना चाहते हैं। आप इल्म में होगा इस वक्त तकरीबन $2 बिलियन पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, जो कि मैं समझता हूँ ये कुछ भी नहीं है।
क्योंकि मुश्किल तरीन बैंकिंग सिस्टम है पाकिस्तान का पैसे ट्रांसफर करने का। यस, पहली बात तो ये, इनको क्यों नहीं ये बात समझ आती कि पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। विद इन क्लिक में जहाँ दुनिया के अंदर जहाँ चाहूँ विद इन फ्यू मिनट जितने पैसे चाहूँ ट्रांसफ़र कर सकूँ। मैं अपने अकाउंट के अंदर पैसे वहाँ रोशन डिजिटल अकाउंट तो उन्होंने बना दिया, उसको भेजने के लिए मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा, जाके बैंक में बैठ के वो गाड़ी पार करने के लिए पता नहीं बाहर टिकट लग जाए, एक मतलब एक तवील प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा। तो फिर आदमी कहता है यार क्या करें। हाँ, फिर तो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान से अपने टाइज, क्योंकि पाकिस्तान में अगर सिर्फ पैसे भेजना उसका भी फायदा आपकी गवर्नमेंट को ही होगा, फायदा एट दी एंड इवेंचुअली आपकी इकोनॉमी को होगा। उसमें ही अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुश नहीं रख सकते तो फिर तो मसले मसाइल होंगे। अच्छा, वोट के हक के हवाले से बड़ी ये थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए, तो इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों की क्या तवक्कुआत हैं, या गवर्नमेंट को कोई स्पेशल कोई आप लोग बातचीत चल रही हो आपसे? अच्छा, मेरी तकरीब इस बारे में सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं वोट के हक में हूँ और मैंने यहाँ जब फॉरेन मिनिस्टर हमारे आए थे और मैंने ओपनली ये कहा था, और या अगर यूट्यूब पे जाएँ तो आपको मेरी स्टेटमेंट मिल जाएगी अपने फॉरेन मिनिस्टर को मुखातब करते हुए कि हमें वोट का हक चाहिए, लेकिन सिर्फ वोट का हक का ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, फ़ायदा तो उनको होगा जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जो कैंडिडेट हमारे वोट से MNA या MPA बनेंगे, उनको फ़ायदा। हमें क्या फ़ायदा हुआ? हाँ। हमें सिर्फ फ़ायदा उस सूरत में हो सकता है कि हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और अगर हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी तो हमारे जो इशू हैं, हमारे मामलात जो हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेहतर समझते हैं, और यकीनन उन मसाइल को हल करने में भी ये बेहतर लाएमल इख्तियार करेंगे। अब ये मेरा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी, साबका हुकूमत ने एक लालीपाप दिया था जो कि अक्सर इन्होंने मीडिया के ऊपर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट वो दे रहे थे, तो वोट अपोजिशन। अच्छा, हकायक से लोग जो है आगाह नहीं होते, क्योंकि मैं इनका मुझे चीज़ों का सारा इल्म था। तो वो 17 लॉ इन्होंने तैयार किए थे, जो बिल जो इन्होंने पास करवाने थे, और आप चेक करवा लें इस बात को कि लास्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों का ओवरसीज वोट का इन्होंने रखा हुआ था, जबकि अपोजिशन ने कहा कि आप ये सारे लॉ लेके आ जाएं, वेट करें इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर जाएंगे, और उन्होंने बाकी छोड़ दिया 16 और 17 के ऊपर शुरू कर दिया। जबकि मेरा ये स्टांस है कि अगर इमरान खान उनकी हुकूमत इतने ही सरखेल थे और उनके दिल में इतना ही दर्द ओवरसीज पाकिस्तानियों का, तो 3 साल बाद उन्हें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट क्यों याद आया? 3 साल तो अपनी हुकूमत करते रहे। जब उन्हें लगा कि अब हमारी हुकूमत तो जाने वाली है, तो इनके हर अमल के अंदर कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई चाल, कोई ना कोई कहानी होती है, और इन्होंने ये शोशा छोड़ के लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानी सीधे साढ़े पाकिस्तानी बेचारे जो समझते हैं कि हाँ साहब बड़े हैंडसम हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, उनका इन्होंने माइंड जो है वो वाश किया हुआ है, और वो लोग जो है इन बातों को मान जाते हैं। लेकिन मेरे जैसा कारकुन कैसे मानेगा? जाहिर है जो भी डिलीवर करेगा, तो आपको तो एट दी एंड चेहरे बदले जो मर्जी हो, जो भी आप लोगों की आवाज़ बनेगा, जो डिलीवर करेगा, सारी हमदर्दियाँ, सारा वोट और सपोर्ट तो फिर उसी के साथ होगा ना। और यही पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया खालिद अवाद साहब आपके वक्त के लिए। और यही बात है कि जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी इलेक्ट होकर आए, एट द एंड इवेंचुअली चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, चाहे वो यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी है, अगर भाई आप डिलीवर करेंगे तो वोट और सपोर्ट आपके साथ है, और हक भी आपका है कि आप गवर्नमेंट में आए।